اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عزیزان محترم، یہ سورہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اس میں 7 آیتیں ہیں، 25 کلمات ہیں اور 140 حروف ہیں۔ یہ اتنا اہم سورہ ہے قرآن مجید کا کہ جتنے نام اس سورے کے مفسرین نے لکھے ہیں اتنے نام کسی اور سورے کے نہیں۔ مشہور ترین ناموں میں اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کی اوپننگ، کتاب کا افتتاح، کتاب کا مقدمہ۔ اس کا اہم نام ہے ام الکتاب، کتاب کا مرکز، کتاب کا تخم۔ اس کا نام ہے الحمد، کیونکہ سورے کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سبع مثانی، جیسا کہ قرآن مجید کے 15ویں سورے میں، سورہ ہجر میں، پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام سے خطاب فرماتے ہوئے یہ ارشاد کیا کہ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ حبیب، ہم نے تمہیں 7 مقرر آیتیں دی اور قرآن مجید دیا، قرآن عظیم دیا۔ یعنی اتنا اہم سورہ ہے، سبع مثانی یعنی 7 مقرر آیتیں، اتنا اہم سورہ ہے کہ اسے قرآن کے مقابلے میں الگ اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ ہم نے تمہیں سبع مثانی عطا کیے اور قرآن عظیم عطا کیے۔ اس سورے میں جن مضمرات کو پروردگار عالم نے سمویا، ان مضمرات کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ اگر فاتحۃ الکتاب سمجھ میں آ جائے وہ مضمرات بھی سمجھ میں آ جائے۔ فاتحۃ الکتاب کے معنی کتاب کا مقدمہ۔ عزیزان محترم، جب کتاب پڑھی جاتی ہے، کوئی انسان کسی کتاب کو پڑھتا ہے تو اسے یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کتاب کا موضوع کیا ہے، کتاب میں کن کن مسائل پر گفتگو کی گئی ہے، کتاب مجموعی طور پر کہنا کیا چاہتی ہے، وہ پہلے اس کے مقدمے کو پڑھتا ہے۔ اور مصنف کی شعوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کتاب کے مقدمے میں ان سارے مسائل کو مختصراً ذکر کرے جو کتاب میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ، جس کا نام سورہ حمد بھی ہے اور سبع مثانی بھی ہے اور ام الکتاب بھی ہے، یہ سورہ ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کا مقدمہ۔ تو ظاہر ہے کہ جتنے مسائل پروردگار عالم نے مختلف مواقع پر اور مختلف منزلوں میں اور مختلف سوروں میں قرآن مجید میں پھیلا کے بیان کیے، ان سب کی تلخیص اس چھوٹے سے سورے کے اندر یقینی طور پر موجود ہو۔ تو آج کی حد تک ہم یہ طے کریں کہ قرآن مجید کے بنیادی موضوعات ہیں کہ اگر بنیادی موضوعات سمجھ میں آ گئے تو پھر ان کی تلخیص بھی اس سورے میں سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، قرآن مجید میں یوں تو بہت سے موضوعات ہیں اور دنیا کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جسے قرآن نے ڈسکس نہ کیا، جسے قرآن نے پڑھتا نہ ہو اپنی کتاب اور اپنے الفاظ۔ لیکن بنیادی طور پر جو قرآن مجید کی تقسیم ہے، وہ تقسیم یہ ہے کہ اس کتاب میں عقائد ہے، پہلا۔ اس کتاب میں احکام ہیں، دوسرا موضوع۔ اس کتاب میں قصص ہیں، پچھلے زمانے کے واقعات، وہ اچھے لوگوں کے ہوں یا برے لوگوں کے۔ تو بنیادی طور پر اس کتاب کے 3 موضوعات: عقائد، احکام، قصص۔ اب اگر آپ توجہ فرمائیں گے
तो आपको अंदाजा होगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बे ये जो इस्तेमाल हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बे, ये हर्फ है, और इस लफ्ज़ बे को लुगत अरब में मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया गया। एक तरीका है उसका अलबाउ लिल इस्तिआनत, बे मदद के लिए और सहारे के लिए इस्तेमाल होती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सहारा अल्लाह के नाम का जो रहमान है, रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमद उस अल्लाह की जो आलमीन का परवरदिगार है। मालिक यौमिद्दीन, मैं दरमियान से एक जुमले को छोड़ रहा हूं। मालिक यौमिद्दीन जो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु, परवरदिगार हम फकत तेरी इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और परवरदिगार हम फकत तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मेरे मालिक हिदायत फरमा सिरातल मुस्तकीम की तरफ हम सब। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतें नाज़िल की। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, वो नहीं जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ और वो नहीं जो गुमराह थे। अक्सर तर्जुमा किया जाता है कि न उन लोगों का रास्ता, लेकिन ग्रामेटिकली ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं। ये अर्रहमानी रहीम चूंकि मुकर्रर आया है, इसलिए मैंने तरतीब कलाम को मजबूत रखने के लिए थोड़ी देर के लिए उसे हटा के अर्ज किया। तो गुजारिश आज की हद तक कुल इतनी है कि परवरदिगार आलम ने इस छोटे से सूरे में जो अदब दिया और जो उसूल दिया सारी इंसानियत को, वो उसूल ये है कि सहारा अल्लाह के नाम का। यानी जो भी काम करो, जिस काम का भी आगाज करो, जिस मंजिल फिक्र में तुम्हारा दिमाग कन्विंस हो जाए कि इसे करना है, उसके आगाज में ये जरूर कहो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सहारा अल्लाह के नाम का जो रहमान भी है और रहीम। यही सबब है कि अगर आप तारीख अंबिया को उठाकर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि मुख्तलिफ अंबिया ने मुख्तलिफ मराहिल में इस जुमले को इस्तेमाल किया। मैं सूरह हूद 11वां सूरा है कुरान मजीद का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, ये कबू किया, आओ कश्ती में सवार हो जाओ। बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा, अल्लाह के नाम से ये कश्ती चलेगी और अल्लाह ही के नाम से ये कश्ती किसी मकाम पर रुक जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बिल्कीस को खत लिखा तो लिखा इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत सुलेमान की तरफ से है और अब खत का आगाज किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अंबिया और मुरसलीन को खा वो किसी भी जबान में हो, पहली तालीम और पहला सबक जो दिया गया है वो ये कि अपने काम का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करो। जहां भी कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इसी उसूल को रखा कि आगाज किया कुरान मजीद का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सहारा अल्लाह के नाम का। जैसा कि आमतौर से तर्जुमा किया जाता है, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी। तो मैं इस मंजिल पर जो बात अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये कि बे है इस्तिआनत के लिए, सहारा अल्लाह के नाम। इससे कबल किसी न किसी शय का मुजमर होना जरूरी है। यानी जुमला अगर नामुकम्मल हो तो आप सोचेंगे ना कि कोई ना कोई जुमला इसके पहले मुकद्दर या महदूफ है, किसे जोड़ा जाए तो जुमला मुकम्मल होगा। तो अब जरा सा दिमाग को ले चले कुरान मजीद के उस ऑर्डर की तरफ जिस ऑर्डर में कुरान मजीद नाज़िल। पहला सूरा क्या है तरतीब नुज़ूल के एतबार से? सूरह अलक। और सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयतें पहली वही में नाज़िल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अभी पढ़ो पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खल्क किया। मैं एक ही आयत की तिलावत करूंगा, उन 5 आयतों की तिलावत नहीं करना चाह रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अभी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खल्क किया। क्या पढ़ो है या नहीं? पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खल्क किया। अब इस आयत में ये तो नहीं है कि क्या पढ़ो, तो अब जरूरी था ना कि बताया जाए कि वो चीज क्या हो जो रब के नाम से शुरू हो और वो पढ़ी जाए। तो बेख्तियार परवरदिगार आलम ने इसके बाद आवाज दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ो कि सहारा अल्लाह के नाम का जो रहमान भी है और रहीम। तो हुक्म इक़रा आया। इख्तिलाफ किया है ना उलमा और मुफस्सिरीन ने कि ये सूरा मक्के में नाजिल हुआ या मदीने में नाजिल हुआ, या मक्के में भी नाजिल हुआ और मदीने में भी नाजिल हुआ, ये इख्तिलाफ है। तो अब ये सूरा मदीने में नाजिल हुआ हो या न हुआ, इतनी बात तय है कि बेसत के इब्तिदाई अहद में पैगंबर इस्लाम पर नमाज वाजिब हो चुकी थी और नमाज का ये सूरा जुज़ लाजिम है, इसलिए इसका मक्के में नुज़ूल यकीनी तौर पर साबित है। तो अब आवाज दी कि सहारा अल्लाह के नाम का जो रहमान है और रहीम, और फिर बेख्तियार आवाज दी पैगंबर इस्लाम ने कि कोई अमल ऐसा नहीं है दुनिया का
जो किया जाए और उसके आगाज में यह जुमला न कहा जाए, इसलिए कि अगर कोई अमल ऐसा हो जो तुम कर रहे हो और उसके आगाज में इस जुमले को न कहो, इसका नाम है बसमला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस जुमले को न कहो तो वो अमल मनहूस है, उस अमल में तुम नाकामयाब हो जाओगे, वो अमल बर्बाद हो जाएगा। और अगर तुमने बिस्मिल्लाह के साथ अपने काम को शुरू किया तो परवरदिगार आलम तुम्हें उस अमल के अंदर बरकत अता फरमाएगा। भाई ये जो उसूल दिया गया है, इस उसूल का पसमंजर क्या है? कोई ना कोई बात तो होगी जिसकी वजह से ये कहा गया कि शुरू करो अल्लाह के नाम से, और जब तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न कह लो उस वक्त तक अपने अमल को स्टार्ट न करो, अपने अमल का आगाज न करो, तो कोई ना कोई पसमंजर तो है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस बात को याद रखिए कि 4 लफ्ज हैं और 1 हर्फ, बे है हर्फ, जिसके मानी मैंने आपको बता दिया सारा। इस्म अल्लाह रहमान रहीम, 4 अल्फाज है ना, इस्म अल्लाह रहमान और रहीम। अजीब और गरीब बात यह है कि ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद में 114 मकामात पे इस्तेमाल हुई, 113 मकामात पर सूरों के आगाज, और 1 मकाम पर सूरह नमल में इस आयत का हवाला मैं भी देके गुजरा हूं कि इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 114 मकामात है। अल्लाह परवरदिगार आलम का इसमें साथ है, जाती नाम है, और रहमान और रहीम उसके सिफाती नाम है। तो क्या सिफाती नाम अल्लाह के फकत रहमान और रहीम है? नहीं, रहमान भी है, रहीम भी है, कहार भी है, जब्बार भी है, मुतकब्बिर भी है, रऊफ भी है। बाज़ दुआओं में परवरदिगार आलम के 1000 नाम है, 1000 नाम है। अब आपको इससे अंदाजा होगा कि अब्द का और माबूद का रिश्ता क्या है, और वो रिश्ता ये है कि परवरदिगार आलम ने 114 मकामात पर कुरान मजीद में अपने जाती नाम के बाद जो सिफत इस्तेमाल की है वो रहमत की सिफत है, वो रहमान है, वो रहीम। भाई कह सकता था ना बिस्मिल्लाहिल कहारिल जब्बार, बिस्मिल्लाहिर रऊफिर रहीम मसलन, लेकिन नहीं कहा। हर मकाम पर अल्लाह के बाद लफ्ज़ रहमान और रहीम को रखा है। तो बतलाना यह था कि बंदों से जो उसका रिश्ता है वो कहारियत का रिश्ता नहीं, बंदों से जो उसका रब्त है वो जब्बारियत का रब्त नहीं है, वो रहमानियत और रहीमियत, वो रब्त थी रहमानियत और रहीमियत। तो जब रहमानियत और रहीमियत का रब्त है तो तुमने अपने काम का आगाज किया, तुम अपने काम को करने जा रहे हो, तो इस बात का ख्याल रखो कि जब तुम अपने काम का आगाज कर रहे हो तो तुम मुख्तार, तुम्हारे पास इख्तियार है काम के करने का। लेकिन क्या ये समझते हो कि नऊज़ बिल्लाह वो इख्तियार देकर खुद आजिज हो गया? नहीं, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है। तुमने अपने काम का आगाज किया है और अब उसकी रहमानियत का तकाजा ये है कि वो तुम्हारे काम को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाए। तो उसकी रहमानियत की फितरत है और उसकी रहमानियत का तकाजा है कि तुमने जिस काम का आगाज किया है उसे वो सही तरीके से तुम्हारे ही हाथों से अंजाम दिलवा दे। इसलिए कि अगर वो इंसान के आमाल की लगाम को अपने हाथ में ले लेता तो न सजा मंतकी होती न जजा मंतकी, यानी सजा भी गैर मंतकी हो जाती, जजा भी गैर मंतकी हो जाती। इसलिए कहा कि नहीं, तुम अपने अमाल में आजाद, तुम अपने अमाल में आजाद। जब अमाल में आजाद हो तो अब अमल करो। जरूरी तो नहीं है कि सही नतीजे तक उस अमल के पहुंच जाओ, और दुआ मांगो परवरदिगार से कि वो तुम्हें सही नतीजे तक पहुंचा दे। तो वो दुआ क्या हो? वो दुआ ये हो कि जब अपने काम का आगाज करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज करो। यही सबब है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे मोहम्मद हनफिया एक जंग में फनून हर्ब तालीम करते हुए अजीब जुमले कहे जो आज तक नहजुल बलागा में मौजूद है कि बेटे कदमैक अलल अर्ज़ या फिल अर्ज़, बेटे जब जंग के मैदान में जाओ तो अपने कदमों को जमीन में गाड़ देना, अज़्ज़े नाज़िक, और अपने दांत को दांत पे जमा लेना। और देखो जब तलवार खींचना तो सफे दुश्मन में से पहली सफ पे निगाह नहीं रहे, आखिरी सफ पे निगाह रखना। यानी ये फनून हर्ब है जो अली अपने बेटे को तालीम दे रहे हैं। जमीन में गड़ जाओ मेख की तरीके से, दांत पर दांत को जमा लो और दुश्मन की आखिरी सफ पे निगाह रखो, और अब तलवार चलाते हुए आखिरी सफ तक जाओ, और जब आखिरी दुश्मन को भी कत्ल कर लो तो इस पर ना कर जाना कि फतह मैंने किया है, बल्कि तलवार मैंने चलाई है, फतह दी उसे रहमान ने। ये समझते रहना कि तलवार मैंने चलाई और उस रहमान रहीम ने फतह दी है, जिसके नाम से मैंने इस काम का आगाज किया है। तो हकीकत ये कि बसमला में परवरदिगार आलम ने ये राज रखा है कि हम रहमान भी हैं और हम रहीम भी हैं। अगर तुमने रहमान और रहीम के सहारे से और हवाले से उस काम को किया तो हम तुम्हें सही नतीजे तक पहुंचाएं। ये है फलसफा और ये बैकग्राउंड बसमला का। अच्छा, तो अब इंसानी अमल पर उसका असर क्या है? भाई बसमले का असर इंसानी अमल पर क्या है? बसमले के मानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हर काम से पहले पढ़ना,
ये है बस। अब जाहिर है कि इंसानी अमल पर उसका कोई ना कोई असर तो मुरतब होना चाहिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए इंसान की जिंदगी में तनासुब और तवाज़ुन का होना जरूरी है। बेरब्त बातें न समाज बर्दाश्त करता है न कोई शख्स बर्दाश्त। यानी अगर उसी का मौका हो और आप लिबास आदा पहन के चले जाएं तो बड़ी बेमौका की बात। और अगर कोई आजादारी का मौका हो, कोई रंजो गम की ताज़ियत की महफिल हो और उसमें आप लिबास अरूसी पहन के चले जाएं तो बेमौका होगी ना। लोग कहेंगे कि ये सलीके का और ठप का काम नहीं। तो अगर दुरंगी पैदा हो जाए कि मौका कोई और है और अमल कोई और, तो इसी का नाम है इस्लाम की इस्तिलाह में मुनाफिक। तो बहुत तवज्जो रखिएगा, बेख्तियार आवाज दी कि अपने हर काम के आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहो। हुक्म है ना पैगंबर इस्लाम का कि हर काम के आगाज में कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई नेक काम के आगाज में तो कहे इंसान, अमल बद अगर कर रहा हो तो क्या उसके आगे भी कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? देखिए बसमला का असर बराह रास्त इंसानी जिंदगी पे क्या आ रहा है। बुरे काम हम जब करने जाए नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक तो क्या उसको भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे? तो बतलाना यही था कि अगर तुमने आदत डाल ली हर काम के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने की, तो जैसे ही बुरे काम की तरफ जाओगे वो जुमला तुम्हें उस काम से रोक देगा। वो जुमला तुम्हें उस काम से रोक देगा। तो ये है बराह रास्त असर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इंसानी जिंदगी। और अब बेख्तियार आवाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमद उस अल्लाह की जो आलमीन का परवरदिगार। अलहम्द में अलिफ लाम है और अलिफ लाम कभी जिन्स के लिए इस्तेमाल होता है, अब ग्रामर की, कभी अहद खारिजी के लिए इस्तेमाल होता है, कभी अहद ज़हनी के लिए इस्तेमाल होता है, कभी इस्तिग़राक़ के लिए इस्तेमाल होता है। बड़े मौक़े हैं अलिफ लाम के इस्तेमाल का। मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ अलिफ लाम जो है अलहम्द में यह है इस्तिग़राक़। और इस्तिग़राक़ के मानी है कि कोई फर्द बाहर न रहे, सारी अफराद सारी फर्दें सिमट के आ जाए। तो अलहम्द यानी जितनी भी तारीफें दुनिया में मुमकिन है वो सब अल्लाह के। यह तर्जुमा अलहम्द का। हम के मानी क्या है? हम के मानी तारीफ। अब हम के भी एक टेक्निकल मानी है जिसको मैं जाहिर है के बयान करके फजा को बोझल नहीं बनाना चाह रहा हूँ। और सादे अल्फाज में हम के मानी तारीफ। तो दुनिया में जितनी भी तारीफें हैं वो अल्लाह के लिए। ऐसा अल्लाह रब्बिल आलमीन जो आलमीन का रब है। अब गुफ्तगू को इस मंजिल पर रोकें। सारी तारीफें अल्लाह के लिए। तो किसी और की तारीफ मुमकिन है? फिर कुरान के आगाज में आवाज दे रही सारी तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का परवरदिगार है। तो अब अच्छे मंजर की तारीफ होगी, आप कोसार की तारीफ करेंगे, आप किसी खूबसूरत शक्ल सूरत की तारीफ करेंगे, भाई सारी तारीफें तो अल्लाह के लिए। तो क्या इंसान बिल्कुल समाज से कट के रह जाए? क्या इंसान के जमालियात खत्म हो जाए? भाई आपके सामने अगर कोई अच्छा शेर पढ़ा जाए आप उसकी तारीफ करते हैं, कोई अच्छी इमारत आ जाए आप उसकी तारीफ करते हैं, सब्ज़ार में चले जाए आप सब्ज़ार की तारीफ करते हैं, सर्वफलक पहाड़ नजर आ जाए आप उसकी तारीफ करते हैं, मनाजिर की तारीफ करते हैं, दरख्तों की तारीफ करते हैं। तारीफ करना इंसान की फितरत है। और कुरान मजीद आवाज दे रहा है कि सारी तारीफें मखसूस है अल्लाह। तो अब क्या इन मनाजिर की तारीफ न की जाए? तो इस मंजिल पर बात करो। फिर अज़ीज़ान मुहतरम, मैं एक जुमला आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ और वह जुमला ये है कि बारिश बरसी पौधे उगे। भाई ये जुमला कुफ्र है इस्लाम है। आप यकीन फरमाइएगा कि ये जुमला अगर मुआहिद की जबान से निकले तो ये इस्लाम है, और यही जुमला अगर काफिर की जबान से निकले तो कहने को कैसे? यानी अब मैं बातें करना चाह रहा हूँ, मैंने ये बात अर्ज क्या किया आपके खिदमत। देखिए बारिश बरसी पौधा उगा, अगर काफिर ये जुमला कहे तो वो खुदा को तो मानता नहीं, वो बारिश को पौधे के उगने का हकीकी सबब समझ रहा है। इसलिए ये जुमला कुफ्र है। और मुसलमान अगर कहे कि बारिश बरसी पौधा उगा तो मुसलमान को पहले ही तय कर चुका है ना कि बारिश जो है पौधे के उगने का मजाजी सबब है और हकीकी सबब अल्लाह है। तो एक ही जुमला कुफ्र भी है और इस्लाम भी है। एक ही जुमला कुफ्र भी है और इस्लाम भी है। तो बस इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने फूल की तारीफ खुदा से हट के की कि कितना अच्छा फूल है तो ये जुमला है कुफ्र। और अगर आपने खुदा की सन्नाई की तारीफ की तो यही जुमला आईने ईमान है। तो सारी तारीफें मखसूस है अल्लाह के लिए, सारी तारीफें मखसूस है अल्लाह के लिए। लेकिन अगर आपने किसी फूल की तारीफ इसलिए की कि क्या अच्छा खालिक है जिसने इतना अच्छा फूल बनाया है, तो यही तारीफ खुदा की काउंट होगी, खुदा की शुमार होगी। तो अब अगर कुछ ऐसे बेअयब इंसान सामने आ जाए जिन्हें देखकर बेख्तियार खुदा याद आए, तो ये न बिदअत है न हराम है, बल्कि ऐन तारीफ खुदाबंदी आलम है, ऐन तारीफ खुदाबंदी आलम है। तो बेख्तियार परवरदिगार आलम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमद है उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का परवरदिगार है। इसलिए आप
जरा सी तवज्जो फरमाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और उसके बाद फिर दोहराया अर्रहमानिर रहीम, वो रहमान भी है रहीम भी। भाई अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम में रहमान कह के गुजरा है और रहीम कह के गुजरा है। और फिर बेख्तियार आवाज दी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर कहा अर्रहमान अर्रहीम, और फिर उसके बाद आवाज दी मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। ये दोबारा अर्रहमानिर रहीम क्यों आया, इसलिए मैंने रोका था जानबूझकर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो चूंकि 113 सूरों में कॉमन है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, इसलिए वो रहमानियत उसकी उमूमी है। और अब उस रहमानियत से हटकर सिर्फ सूरह हमद की हद तक बतलाना था कि वो रहमान भी है और रहीम, रहमान भी है और रहीम। भाई रहमान और रहीम का मतलब क्या है? रहमान के मानी रहम करने वाला, रहीम के मानी रहम करने वाला। तो अगर दोनों अल्फाज मुतरादिफ है, एक ही मानी में है, तो कुरान शायद कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। तो अब कोई फर्क होना चाहिए, रहमान के मानी कुछ और होने चाहिए, रहीम के मानी कुछ और होने चाहिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रहमान के मानी दुनिया में हाजतों को देखकर रहमतें नाजिल करने वाला। ये किसको कितनी हाजत है? भाई ये रहमतें नाजिल करने की जरूरत क्या है? अब मैं बहुत करीब होकर आपसे जुमला करना चाहता हूं। यानी आप पूछ सकते हैं ना कि भाई आपको क्या जरूरत है कि आप रहमतें नाजिल करें? इसलिए जरूरत है कि वो पहले ही इकरार कर चुका है कि मैं हूं रब्बुल आलमीन, आलमीन का पालने वाला, और वो रुबूबियत मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक रहमत साथ है। तो रहमान के मानी एहतियाज को देख के रहमत देने वाला, और रहीम के मानी अमल को देख के रहमत देने वाला। तो रहमान का ताल्लुक है दुनिया से और रहीम का ताल्लुक है आखिरत से। ये बात को मैं समझता हूँ कि वाज़ेह हुई। रहमान हाजत को देख के रहमत देने वाला, रहीम अमल को देख के रहमत देने वाला। ये जुमला रखा कहाँ? पहले रखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आलमीन का रब है, और बाद में रखा है मालिक यौमिद्दीन, ये क़यामत का मालिक है। तो चूंकि मैं आलमीन का परवरिश करने वाला हूं, इसलिए हाजत देख के इस दुनिया में दूंगा, रहमान हूं। और चूंकि मैं मालिक यौमिद्दीन हूं, इसलिए अमल देख के वहां जजा दूंगा, रहीम हूं। तो मैंने इस आयत को इसलिए रोका था कि आपकी खिदमत में पूरा मैसेज करीब हो जाए कि इस आयत को परवरदिगार आलम ने खुसूसियत के साथ दोबारा सूरह हमद क्यों रखा, और रहमानिर रहीम, और उसके बाद आवाज मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। भाई आलमीन के मानी क्या है? आलमीन में जहां तक भी मशरिक चला जाए आलमीन, जहां तक मगरिब चला जाए आलमीन है, शिमाल जुनूब आलमीन है, ऊपर जहां तक फजा चली जाए वो आलमीन है, नीचे जहां तक फजा चली जाए वो सब आलमीन है। आलमीन यानी मकान, जहां तक मकान का मतलब घर नहीं, जहां तक स्पेस है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहां जहां तक मकान है वहां तक उसकी रुबूबियत है। और उसके बाद बेख्तियार दरमियान की आयत पे छोड़ रहा हूँ, आवाज दी मालिक यौमिद्दीन, क़यामत तक का मालिक है, यानी जहां जहां तक जमाना जाएगा वहां तक उसकी मालिकियत जाएगी। तो ये जो आप दुनिया देख रहे हैं, ये दुनिया टाइम एंड स्पेस की दुनिया, ये दुनिया पूरी की पूरी कायनात ज़मान व मकान के तलिश में बंद है। यानी जितनी भी आपको तरक्कियां नजर आ रही है, या ज़मान की तरक्की है या मकान की तरक्की, और जितनी मुस्तक़बिल तरक्कियां होती जाएंगी वो टाइम एंड स्पेस ही की तरक्कियां होंगी। ये जो हमारे अहद के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन ने बोध राबे का नजरिया दिया, वो डायमेंशन का जो नजरिया दिया, तो ये नजरिया भी ज़मान व मकान ही का एक नया पड़ता, ज़मान व मकान ही का एक नया पड़ता। अगरचे ये जुमला करता जाऊं कि हम इस नजरिए को आइंस्टाइन का नजरिया समझते हैं, लेकिन सदियों पहले मीर बाक़र दामाद ने और सदरुद्दीन शिराजी ने इस नजरिए को हरकत जौहरी के नाम से अपनी किताबों में तहरीर किया है। यानी ये नजरिया भी बोध राबे का नजरिया खालिस इस्लामी नजरिया है जो मुस्लिम फलसफा पहले दे चुके, लेकिन इस मंजिल पर मैं रुकना नहीं चाह रहा। तो ये नजरिया भी ज़मान व मकान ही से ड्रॉ किया गया। तो अब जहां तक जमीन जाए, स्पेस जाए, फजा जाए, वो है आलमीन, और जहां तक जमाना जाए वो है यौम। यही है ना, उसने कहा कि हम है रब्बुल आलमीन, यानी जहां तक जमाना जाएगा, जहां तक जमीन जाएगी, जहां तक स्पेस जाएगी, हमारी रुबूबियत कायम है, और हम है मालिक यौमिद्दीन, जहां तक जमाना जाएगा वहां तक हमारी मालिकियत कायम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।